ایک دن پہلے میرے نبی نے دعا فرمائی, ادھر دیکھا جائے اینج, یا اللہ دو عمر ہیں, دو عمر, ایک مینو دے دے. کتنے عمر ہیں؟ ابو جال کا نام بھی عمر ہی تھا اور حضرت فاروق اعظم کا نام بھی عمر ہی تھا. کہا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. تے تھوڑی دیر تو بعد پتہ کی آکھیا ہے, چاس لے آجے پوری. فرمایا یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً. فرمایا جے خطاب دا پتر عمر دے چھڑے نا تو تیرے اسلام نو عزت عطا فرما دیتی جائے گی. بس ادھر بھی دیکھنا, نبی پاک نے یہ دعا کی نا تو دوسرے دن حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی. وہ لمبا واقعہ ہے, آپ نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے کہ معاملہ ختم ہو جائے. وہ بندے نے پوچھا کدھر ہے؟ آج میں کام مکا چھڑنا ہے. انہوں نے کہا مکائی بعد دے پہلے گھر دا پتہ کر, تہاڈی بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, انہاں دا نام بھی فاطمہ سی. آپ نے کہا اچھا. آپ گئے کرتے ہو قرآن دے نا, اس وقت کتابی شکل میں نہیں تھا, چنگ برتے تھے, پڑھ رہے تھے. آپ نے بہنوئی کو مارا, بہن کو مارا, بہن نے ایک ہی گل کی تھی, بہناں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں جے, انہاں دا حق نہ ماریا کرو تے انہاں دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو. پیر من, فقیر من, تھی من, بہن من. سمجھ آ رہی ہے؟ بہناں نو روا کے نہ اپنے گھروں کڈیا کرو, بندے بنیا کرو. ہاں انہاں نو بھی چاہیے کہ جدوں گھر آؤن نا تے اپنے بھراواں دے گھر کسے قسم دا پھڈا نہ پا کے جان. انہاں نو بھی چاہیے کہ سارے نو جوڑ کے جان. میں اسے معاشرے چ رہی نا, میں کو ہندوستانوں تھوڑے آیا, مینوں پتہ ہے گھراں چ کی ہوندا ہے. اس واسطے دونوں پاسوں ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹیوں کی عزت حضور نے کہا ہے ضرور کیا کرے, بات دور نہ چلی جائے. بہن نے ایک ہی گل کی تھی, توجہ بھراو ادھر میرے حال, ایک ہی گل. انہیں آخیا عمر ایویں جو ماری کٹی جانا, ٹھڈے پیا مارنا ہے, اے ساڈی تلوار چکنا, ساڈے ٹوٹے کر. جے ٹوٹے ٹوٹے چو محمد نا دی آواز نہ ہون تے گل تے کچھ نہ ہوئی رہا. توجہ ہے جی حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ آپ نے جب یہ کہا, انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ سورہ طٰہٰ کی چند آیات. فرمایا پہلے غسل کرو, پاک ہو جاؤ گے تو بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن ہے اور قرآن کو پاک ہو کر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. آپ تشریف لے گئے, غسل کیا, چند آیات دیکھی تو کہا مجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلو. زید بن ارقم کے گھر میرے نبی جلوہ گر تھے, حضرت امیر حمزہ وہاں تھے. لوگوں نے بتایا عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے. حضرت امیر حمزہ تو خدا کے شیر بھی تھے اور مصطفیٰ کے شیر بھی تھے. آپ نے اپنی تلوار کو یوں پھینکا اور دروازے پہ آ کے کہا عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا, ویلکم کیا جائے گا, خوش آمدید کہا جائے گا, اہلم و سہلن مرحبا کہا جائے گا. اور اگر برا ارادہ ہوا تو آج میں اس کی تلوار پکڑ کر اگر دو ٹکڑے نہ کروں تو مجھے خدا کا شعر ہی نہ کہنا. یہ حضرت امیر حمزہ نے جرت مندانہ خطاب کیا وہاں پر. حضرت عمر آئے تو قرآن کی آیات کا اثر تو پہلے ہی تھا, حقیقت یہ ہے نبی کی دعا کا بھی اثر تھا. ہن ایتھے گل سنیا جے, جڑے دیوانے ہوندے نا او گل کاری چھڑ دے نے. حضرت عمر نو دوروں ویکھ کے نا ایک بندہ کہنے لگا عمر, میں کہا ہاں جی. او کہندا بڑا خوش نصیب ہے. کداں؟ کہندا کل میں نبی پاک نو دعا مانگدیاں ویکھیا سی, میں تے ویکھدا سی عمر آوندا کس ویلے. یا تو خوش نصیب ہے تو آج کلمہ پڑھ لے گا. نبی پاک کے پاس آیا, آپ نے دامن پکڑ کے یوں ہلایا, کیوں نہیں کلمہ پڑھتے, وہیں کلمہ پڑھ لیا. لو جی اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگا کہ خانے کعبے میں بیٹھے ہوئے کافر ڈر گئے, کی ہویا ہے؟ ہونا کہ آج جنے نے کلمہ پڑھیا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے اور آج چاڑیا ہو گیا ہے, چاڑیا ہو گیا ہے. اپنے لہجے میں بات کر سکتا ہوں, لگ جاندہ پتا تسی بھی اپنے لہجے سن دے ہو کہ نہیں سن دے. جب تک حالت کفر میں تھے نا تو کہتے تھے چاڑیا نہیں ہون دینا. جب تک حالت کفر میں تھے تو کہتے سی چاڑیا, تے سائیاں نے آکھیا اسی 40واں کرنا ہی تیرا ہے. اب دیکھ لو پھر حضرت عمر بن خطاب نے 40واں کلمہ, اور پھر ہوا کیا تھا ادھر دیکھو. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا حق پر ہیں. تے فرمایا آپ لوک کے نمازاں کیوں پڑھنے ہیں؟
समझ आ रही है ना? आपने फरमाया उमर क्या मशवरा देते हो? कहा हुजूर मशवरा ये आज काबे दे विच चल के पढ़ना है, मैं वेखांगा केड़ा रोकदा है। इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो, है इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो। नबी पाक ने फरमाया ठीक है, लो जी 20 बंदियां दियां दो लैना बन गईयां, एक के सामने उमर बिन खत्ताब जा रहे हैं, दूसरे के सामने हजरत अमीर हमजा, और बीच में मुस्तफा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम। ये खाने काबे में जा रहे हैं और उस दिन पहली नमाज हुई। अगर उमर कलमा ना पढ़ते तो तेरियां नमाजा बाहर कित्थों निकलनियां सन? अब समझ आ रही है आप हजरात को? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ लिया और 40वां हो गया। तो कहने का मकसद ये, जब उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम फिर इंजदा तकड़ा होया है। ये जो 40 का अदद है ये अदद तमाम है। पुत्र इधर मेरे वाल देखो ना, मेरी जियारत करो थोड़ी जी, मैं बावुजू बैठा। थले मुराकिब हो जाते हो, मोबाइल की जियारत थोड़ी करया करो, को साडी भी कर लो थोड़ी देर पुत्र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ बैठे हैं, ओ मलंगा बैठे हैं, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। अजीदाने गिरामी, ये है 40 का अदद। बात कहीं दूर ना चली जाए भाई, अगर 40 दिन बारिश बरसी है ना, 40 दिन, तो मेरे अजीज भाई 39 दिन परेशानी की बारिश थी, ताकि इंसान की तवज्जो रब की तरफ रहे। अगर एक दिन खुशी का आ भी जाता है तो भूल क्यों जाते हो? उस दिन भी तो अपने रब को याद रखा करो ना मेरे अजीज मेरे भाई। जो खुशी में याद रखता है कमाल तो उस बंदे का होता है। अब आ जाइए जरा आगे। हजरत सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम, आपकी तख्लीक मुकम्मल, खाना काबा तैयार कर दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, आज यहाँ का तवाफ होता है। और पता है अल्लाह पाक ने फरिश्तों से क्या फरमाया था? नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी पढ़ो। फरमाया जो बंदा मेरे घर का तवाफ करेगा, एक कदम उठा के जब अगला रखेगा तो उस कदम के बदले हम एक गुनाह माफ कर देंगे। सदके जामा, हर कदम के बदले एक गुनाह माफ करूंगा और एक दर्जा बुलंद करूंगा। और अगला जुमला चस दे नाल सुनिया जे, फरमाया जब कोई बंदा मेरे घर का तवाफ करता है तो ऐसे ही है जैसे कोई समंदर में तैर रहा होता है। ये मेरी रहमत का समंदर है, इसमें ये तैरता रहता है और हम इसके गुनाहों को धोकर इसको पाक और साफ फरमा देते हैं। दूसरी हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो खाना काबा का तवाफ करे अल्लाह ने उसके लिए एजाज ये रखा है, इधर से तवाफ मुकम्मल होता है और इधर से अल्लाह ताला एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ये जो खाना काबा है इसके ऊपर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी? 120। फरमाया सित्तून मिन हाल त्वाइफिन, 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं। जाना है मक्के, जाना है खाने काबे, तो फिर ज़ौक़ पैदा कर। 60 रहमतें उन बंदों को मिलती हैं जो वहां पर तवाफ करते हैं। फरमाया अरबाउन लिल मुसल्लीन, फरमाया उनमें से 40 रहमतें उनको मिलती हैं जो वहां खाने काबे में नमाज पढ़ते हैं। 120 टोटल है और तकसीमकारी क्या है मैं बता रहा हूं, और आगे बाकी बच गई 20। फरमाया इशरून मिनहा लिन्नाज़िरीन, फरमाया 20 रहमतें उसे मिलती हैं जो बैठकर खाने काबे को तकता रहता है और ज़ियारत करता रहता है। 120 रहमतें, तवज्जो है कि कोई नहीं है? और ये तो ये रह गया, इसके अंदर मेरे नबी ने फरमाया 2 पत्थर हैं खाने काबे में। फरमाया याकूतान मिन अहलिल जन्ना, फरमाया ये जन्नती पत्थर हैं। पूछा गया कौन से? फरमाया एक रुकने यमानी है और एक हजरे अस्वद है, जन्नत के पत्थर। और हजरे अस्वद के बारे में पता क्या कहा गया? अहले इल्म जानते हैं, आप कई पहली मर्तबा सुनेंगे। फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है। मजा ही नहीं आया। ऐथे मैं कोई दोड़ा पढ़दा, मैया पढ़दा, मियां मोहम्मद बख्श दा शेर पढ़दा, फिर तुसी सुभान अल्लाह कहदे हदीसां ते कौन बोले? फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है, जो उसे हाथ लगाता है समझ लो अपने रब से मुसाफा कर रहा है। फरमाया ये पत्थर है, पत्थर, इसका रंग सफेद था, काला क्यों कर दिया गया?
फरमाया जो भी मुस्तफा का उम्मती से चूमता है अगर वो साहिब ईमान हो तो ये उसके अगर थोड़े बहुत गुनाह हो तो ये उसके गुनाह चूस लेता है और उसको गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है। मेरे नबी ने फरमाया ये वो पत्थर है जिसको अल्लाह ने दो आंखें भी दी हैं। फरमाया इन्ना लिहाजल हजर लिसानम व शफतैन। फरमाया ये वो पत्थर है, तवज्जो है हजरात, जिसको अल्लाह ने जबान भी दी है, होंठ भी दिए हैं, आंखें भी दी हैं। फरमाया यशहदुहु, फरमाया वो गवाही देगा किसके बारे में? लिमनिस्तलमहु, जिसने इसका इस्तिलाम किया होगा या चूमा होगा। क़यामत वाले दिन बताएगा आ भी आया सी, आ भी आया सी, आ भी आया सी। मैं उन्हें मट्ठी जी गल करनी है, मुहद्दिस आज़म दे नौकरों चस आ जावे। मैंने कहा पत्थर जन्नत से आ जाए तो उसे पता है ये कौन है, ये कौन है। तो जो जन्नत का मालिक है उस मुस्तफा को नहीं पता कि ये कौन है और ये कौन है। तवज्जो है कि कोई नहीं है। और यहां एक बात और भी सुन लीजिए भाईजान, हजरे अस्वद के बारे में, वहीं से तवाफ शुरू होना है, वहीं पर आकर इख्तिताम होना है। अगर करीब हूं तो चूम ले, दूर हो तो यू ऐसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, चुमया गया है। और इसको क्या कहते हैं? इस्तिलाम। मैं क्या पत्थर थे ओ एनी दूर है ते एनी दूर साडा सलाम पहुंच गया है। अखे आहो, मैं क्या कहनू अखे पत्थर नू ते मैं क्या मरे जे पत्थर नू साडा सलाम पहुंच जाता है ते मदीने वाले नू क्यों नहीं पहुंचता है? हदीस शरीफ में है, सुन लो, चस ना आवे तो रुपये वापस, तो जी आ जाए तो सुभान अल्लाह मेरे ताई आनी चाहिए। इतनी बात है ना जी। मेरे नबी पाक ने फरमाया एक फरिश्ते की अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी, वो मेरे मज़ारे अक़दस अनवर अतहर पर हाजिर है। कायनात में जब भी कोई बंदा दरूदो सलाम पढ़ता है वो सुनता है और मुझे बताता है फुला बिन फुला, फुला मेरा नाम है समर अब्बास, मेरे वालिद का नाम है गुलाम अब्बास। समझ आ रही है? और मैंने अपने अबू जी से पूछा, मैं कहा हाजी साहब ए जड़ा गुलाम अब्बास ते समर अब्बास, ये अब्बास क्यों है? फरमान लगे तैनू नहीं पता आपा गाजी अब्बास दे नौकर हां। समझ आ रही है? इसी मुहब्बत के कसम खुदा की, और इसी वास्ते लोग कहीं ना मेरा नाम सुन के इंज कंबदे जे इंज इंज, पता नहीं क्या। हालांकि ओ या मैं डाकू मौलवियां अद्धी पौनी रोटी खा के मेरा सारा दिन टप जाता जे, कसमें अल्लाह दी मैं तुम सही दसदा पिया जे। ना मैं को नाल गार्ड रखे ना फलाना लला चढ़ाबा, ठीक है गड्डी है मेरी लोड़ है मैं जाना जो होया, मैं अपनी गड्डी च चाकू भी नहीं रखा, मसवाक रखी है। समझ आई ना? ये तो भी शैतान नूं बड़ी पीड़ हुंदी है ना जी। या किताबां ते या मेरे कपड़े हुंदे ने, बस अल्लाह अल्लाह ते। फिर लोग डरते ने, डरते क्यों ने भाईजान? जिवें यजीदी अब्बास तो डरते सी ना, इदां ही यजीदी फिक्र वाले समर अब्बास तो डरते पै जे। ओदी वजह कि जदों तुसीं हक बयान करना लोगों ने कंबना है। लेकिन मैं कभी भी किसी चेहरे की तरफ देख कर तकरीर नहीं करता। मैनू को तकरीर च घूरी पावे तो मैं होर दब के रखदा हूं। तू इस वास्ते सानू घूरियां पाउणा है, तू साडी जबान ते ताले लाउणा है। ओ जा काम कर, तेरे को पूछ के तकरीर नहीं करनिया। तकरीर वो करेंगे जो रब ने कुरान में कहा है और मुस्तफा ने अपने फरमान में कहा। और ये खुल के बयान की इतनी जुर्रत ना हो तो मौलवी को स्टेज पर बैठने नहीं चाहिए। ये फितरों का दौर है, हमें ये खुल के बयान करना, इसलिए लोग डरते हैं। ये अब्बास नाम का असर है। समझ आ रही है? अगर मैं दुरूद पढ़ूं, गाले समझा रहा सी, फरिश्ता कहता है समर अब्बास वल्द गुलाम अब्बास, एने दुरूद पढ़िया है। ओ यार ऐथे उलमा ने सवाल उठाया है, अगर आप बोलेंगे तो ठीक है वरना तकरीर खत्म कर देंगे। कई बंदे उसले दे बड़ी इस्तिकामत दे नाल चुप शाह बन के बैठे ने। मैं चुप्पा शाहां नूं नहीं मानता, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है? ओ 5 किलो का सिर हिलाने वाले हो, बोलो तो सही ना। आगे आओ। ओ यार दरूद मैंने पढ़ा है तो मेरे बाप के नाम की क्या जरूरत है? उलमा ने यहां जवाब दिया, ओ फरमाया अब्बे दी लोड़ क्यों? फरमाया दरूद पढ़ता ही वो है जिसका अब्बा होता
वालों मुबारक हो, अब्बे सने रजिस्टर्ड हो जाते हो। अब्बे सने ना पढ़ने वाले आप खुद ही गौर करें, हैं तवज्जो है ना। तो अर्ज करने का मकसद ये है, हजर अस्वद ये हर बंदे को जानता है, पहचानता है, और जो सलाम करता है ये उसकी भी क़यामत वाले दिन गवाही देगा और शफात करेगा। और मैं यहाँ पर एक बात कहूँ आपकी खिदमत में, ये खाना काबा के बारे में उलमा ने लिखा क़यामत वाले दिन इसकी नबी पाक के बारगाह में मुलाकात होगी। क़यामत वाले दिन सुनने वाली बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे काबे किधर फिरना है? काबा बोल के बताएगा या रसूल अल्लाह आज मैं शफात कर रहा हूँ। किसकी? ईमान की हालत में जिसने मेरा तवाफ किया आज मैं उनकी शफात कर रहा हूँ। मेरे नबी जब ये बात सुनेंगे तो रोने लग जाएंगे। खाना काबा कहेगा हुजूर शफात तो आपको बड़ी पसंद है और आपको खुश होना चाहिए था, आप रो रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे ए खाना काबा जो तेरे पास आया और ईमान की हालत में आया तू उसकी शफात तो करेगा, जिसने न तुझे देखा है न मुझे देखा है बता उनका कौन है? मैं तो इसलिए रो रहा हूं। आप ऐसे नहीं बैठे इतनी बड़ी तादाद में, आप ऐसे ही नहीं बैठे, कोई चीज है जो तुम्हें बिठाए हुए है। खाना काबा कहेगा हुजूर मेरी पहुंच इतनी है। मेरे आका फरमाएंगे आ तुझे हम बताते हैं मोहम्मद की पहुंच कितनी है। नबी पाक अपना सर सजदे में रखेंगे। और इधर सुनो, ये उलमा ने लिखा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इतने कैमरे लगे, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। एक सजदा नबी पाक का दुनियावी 8 दिनों के बराबर होगा। एक सजदा दुनियावी कितने दिनों के बराबर होगा? 8 दिनों के बराबर। अल्लाह की ऐसी हम्दो सना बयान की जाएगी। अल्लाह राजी होके कहेगा इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह फरमाएगा हबीब अपना सर तो उठा, अपना सर तो उठा। ए हबीब हमें पता है तू शफात चाहता है। जुमले दी चास ले आ जाए। फरमाया हबीब बात जिस जिस की आप शफात करते जाएंगे आज हम उसकी शफात फरमाते चले जाएंगे। और रुकना भाई, अगली बात मेरे आका से जब पूछा गया हुजूर ये बतलाइए क़यामत वाले दिन कितने लोगों की आप शफात करेंगे? मेरे आका करीम ने ये नहीं फरमाया क़यामत का दिन है मुझे क्या पता। फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। मेरे आका करीम ने फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफात करूंगा। अब अगर जुमला समझ आए, गोडे छोड़ो ना सरकार एक बार, गोडे 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 सीधे होके बैठे आ जाए, इधर देखे मेरी तरफ। इतने लोगों की शफात करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया में दरख्त नहीं है, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं। और अगले जुमले पर अगर कोई चुप रहा तो उसके मुकद्दर। फरमा इतने रेत के जर्रात नहीं है जितनों की बख्शिश करवा के मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके चला जाऊं। तवज्जो है, ये हदीस शरीफ है। लेकिन आज मिर्जा पलंबर जैसे कहते हैं फमा तनफअहुम शफाअतु शाफईन। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ने फरमाया कोई किसी की शफात नहीं करेगा। और मैं कहूँ कमड़िया कलियां बह के पढ़ेगा तो पलंबर बनेगा, उस्तादा को बह के पढ़ते समर बनेगा। क्यों जी? अल्लामा इमरान सादिक साहब हैं जी, ये जी बुजुर्गो, उस्ताद के पास बैठोगे तो। अब देखें सूरह मुद्दस्सिर में जो फरमाया ना किसी की शफात नहीं होगी, उसके पीछे और आगे पढ़ लो, दोनों जगह पे काफरों का जिक्र है। अल्लाह फरमाता काफरों की शफात कोई नहीं करेगा। गल काफरां दी हुंदी पई है, धिंगी काफरां च बड़े आ जांदा है। तवज्जो है, धिंगी काफरां च बड़ा ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे ने अपनी बरादरी च जाना है ना। और इधर देखो, इधर देखो, क्या आपने कोई नहीं सुना कि हाफिज शफात करेगा? चुप क्यों बैठे हो? 5 किलो का सिर क्यों लाई जाते हो? आपको नहीं पता कि शहीद शफात करेगा? आपको नहीं पता कि आलिम शफात करेगा? इधर देखो कसम रब्बे काबा की, मेरे नबी ने फरमाया ये वो औरतें और वो मर्द तवज्जो करें जिनकी औलाद छोटी उम्र में फौत हो जाती है, परेशान ना हुआ करें। परेशानी होती है लेकिन बशारत भी उतनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया जिस मर्द और जिस औरत का बच्चा यानी हमल पूरा होने से पहले या बालिग होने से पहले, जिसको कहते हैं कच्चा बच्चा, अगर फौत हो जाए छोटी उम्र में,
فرمایا قیامت والے دن وہ بچہ آئے گا اپنے ماں باپ کی ایک ایک انگلی پکڑ کے، ایک ہاتھ میں اماں ایک میں ابا، جنت میں جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کدھر آئے ہو؟ وہ کہے گا مجھے دنیا میں نہ ماں کا پیار ملا تھا نہ باپ کا ملا تھا، آج میں اکیلا نہیں جاؤں گا، مینوں امی ابا دے، اور اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا، وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ فیصل آباد والوں، وہ جس رب کی بارگاہ میں کچے بچے کا یہ مقام ہے، اس رب کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ بتاؤ نا مجھے۔ بولو بولو بولو، نہیں مرن لگے، بولو سارے۔ حضرات گرامی، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ بات اگر شفاعت کا ہی موضوع ہوتا تو تمہیں بتلاتے، لیکن جو عرض کیا ہے مزہ آیا؟ بولو یارو، چوپشا بولو۔ میں اپنی قوم کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جاگ جائے۔ چپ دے تالے کھول دیو، یہ حضور کی شان ہے۔ لیکن بتلا یہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں شفاعت فرمائیں گے کہ خانہ کعبہ بھی دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اب یہ خانے کعبے کی ہسٹری آپ کو بتائیں، سبحان اللہ۔ ابھی تو زمزم باقی ہے، مقام ابراہیم باقی ہے، صفا مروہ باقی ہے۔ زمزم کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا، در ویکھیا دے، فرمایا جس نیت سے بندہ پیے نا وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں کہا نیت میں ٹیڈے کیتی ہے، زمزم دے پانی نو کی میں پتہ لگ گیا ہے، تو جی اللہ نے انہوں اینا علم دیتا ہے کہ مصطفیٰ دا حال کی ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے بندے۔ اور اگلی بات، اے حدیث سن لو، جڑے جڑے مکے مدینے جاندے پہ ہو، نہ تسی اپنے آپ تے فٹ کرو تو گل تے کچھ نہ ہوئی۔ فرمایا منافق بندہ زیادہ زمزم نہیں پی سکتا، اور مومن بندہ زمزم تو راجدہ ہی نہیں۔ میں جدو پہلی بار یہ حدیث پڑھی نا تو میں گیا، میں کہا مولوی کر نہ چیک اپنے آپ، بڑا تو مولوی با، پھر آپا کولر کو بہ گئے 11 گلاس پی گئے۔ اے حدیث سنن تو بعد، اے روایت ہے، زمزم منافق نہیں زیادہ پی سکتا۔ میں انج دے منافق ویکھے دے، وہ نا اپنی نیسلے دی بوتل نال رکھی ہوندی ہے، یقین اللہ تے کرو، کہندے نے مجھے نہیں پتا اس کولر میں کوئی صاف ہے یا کوئی جراثیم نہ ہوا۔ میں کہا جاؤ جراثیمہ، وہ تمہیں کو جراثیم ہی لگنا ہے مہینوں۔ ادھر ہی ہے نا جی، کڈا وڈا جراثیم ہے یار، کیسا الو ہے، اس کو وہاں چل کے یقین نہیں ہے۔ اللہ کے بندے یہ تو تبرک ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ زمزم کیا ہے؟ اپنی نا نیسلے دی بوتل چکی پھر دا تو میں پی رہا ہوں، جا ڈنگرا، ایتھے آ کے بھی تیرا یقین کتھے چلا گیا ہے؟ اوے اوتھے تے جھوٹا لب جوے تو بھی پی جایا کرو۔ اللہ کے بندے کہاں بیٹھے ہو؟ تے ہن جدو جانا جے نا تے اپنے آپ نو چیک ضرور کرے آجے۔ مومن اور منافق کی پہچانیں بہت زیادہ ہیں، ایک پہچان ان میں سے یہ بھی ہے کہ منافق زیادہ زمزم کا پانی پی نہیں سکتا، تے مومن رجدہ ہی نہیں۔ رج کے پیا کرو تو چس نال پیا کرو۔ خیر، اب یہ تو کعبے کی بات ہے، ابھی بہت ساری باتیں ہیں یار، کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، لیکن اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہوں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا، اب چلو مدینہ شریف میں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، اہل علم اس حدیث کو جانتے ہیں، آپ میں سے کئی پہلی مرتبہ سنیں گے، میرے آقا نے فرمایا المدینۃ معلقۃ بالجنہ، فرمایا لوگوں مدینہ جنت کے اندر لٹک رہا ہے۔ مدینہ کو کوئی عام بستی نہ سمجھنا، اور اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا معلقۃ بالجنہ، اس کا ایک مطلب یہ کہ مدینہ تے جنت اینج نے، صدقے جاواں تہاڈی اینج والی سبحان اللہ، مدینہ تے جنت اینج نے۔ تے ایک مطلب ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ بہت بڑا محل بنائے نا تو بیچ میں ایک فانوس لٹکاتا ہے، جس کی روشنی کے ساتھ محل روشن ہو جاتا ہے۔ چاس لینی ہے جملے دی، فرمایا جنت بڑی سونی ہے،
पर जदों दा मदीना चमकन लगे जन्नत होर सोहनी हो गई है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मदीना ये जन्नत में मुअल्लक है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और इधर देखें, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के। फरमाया कि जब बंदा मदीने के करीब जाता है ना, ये बकायदा हदीस है, यकीन कीजिए बकायदा हदीस है। फरमाया कि फरिश्ते रहमत के गुलदस्ते पकड़कर बंदे का इस्तिकबाल करते हैं। मौलाना साहब आए ने, तुसी फुल पाए, फुल सिट्टे, गुलदस्ते दिते, आखिर को ढिड दे विच प्यार है सी ते तां ही ना। ਇਹਦਾ मतलब है जे मैं तुहाडा प्राहुणा बन के आया ते तुहानू एडा पसंद सी भी असी इस प्राहुणे दा इंज इस्तिकबाल करना है। ओए नबी पाक दा प्राहुणा जदों मदीने जांदा है ना, मेरे नबी नू भी इंज ही पसंद आउंदा है। नबी फरिश्तियां नू फरमाउंदे ने, चलो मेरे प्राहुणे आए जे। और अगले जुमले पर आहिस्ता ना बोलना। उलमा ने कहा बंदे को कैसे पता चलेगा कि वो फरिश्ता मेरे लिए गुलदस्ता लेके खड़ा है? किवें पता चलेगा? कोई निशानी? मैं आहिस्ता से बोलता हूं, दिल के कानों से सुनना, यहां से तुम सुनते रहते हो, कभी इधरों भी सुन लिया करो। फरमाया जब बंदा मदीने के करीब जाए ना और बंदा तलाश करना शुरू कर दे, यार कित्थे नबी पाक दा रोजा, किधर है मीनार, मस्जिद है, समझ लो फरिश्ता मिल गया है। इसकी तवज्जो उधर हो गई, समझ लो फरिश्ता मिल गया। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते मदीना कोई आम चीज नहीं। और इधर देखो, इधर देखो, इधर दाएं बाएं नहीं देखना आपने, बात समझोगे तो मजा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। फरमाया जिसने मेरे रोजे का दीदार किया उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। गिरामी कदर हजरात, कौन है जो लोग रोज़ा मुस्तफ़ा से दूर करते? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, और ये मिर्ज़ा कंपनी और उसके जितने जाहिल हैं और उसके जितने फॉलोअर हैं, ये उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। वारदात का पता कहाँ से डाली जाती है? हदीस से ही पढ़ी जाती है, मफहूम गलत बयान किया जाता है। सुनाऊँ हदीस पाक? बोलो ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे हो सके वो मदीने में मरे। आका करीम ने फरमाया, मनिस्तताअ अन यमूता बिल मदीनते फल यमुत बिहा। जिससे हो सके इस्तिताअत हो के मदीने में मरे, तो फरमाया मदीने में मर जाए। क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले मदीने वालों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाऊंगा। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये वारदात कैसे डालते हैं? इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सिहा में मौजूद है। इधर देखिए मेरी तरफ, आपकी को बेचैनी बाटी, घंटा तो नहीं? ओहो घंटा हो गया है। मैं क्या पूछ लीजिए ना, घंटा हो गया, साड़ी बाजार सी बात है, कई घंटे तो लगे होंगे ने। इधर अगर आप सुनना चाहते हैं तो गल बड़ी टाप दीजिए, गारंटी दे रहा हूं। नबी पाक की एक हदीस है, आका करीम ने फरमाया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तत्तखिजू कब्री ईदा। फरमा मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब यहां पर मिर्जा जाहिल एंड कंपनी वो पता क्या कहते हैं? नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र नूं ईदगाह नहीं बनाना, ईदगाह दे विच रश हुंदा है। हाँ, नबी पाक फरमाते हैं मेरी कब्र ते रश नहीं लाउणा। ऐसे ही सुन्नी है जो मदीने जाते हैं, अब चूंकि मुंह फट है, बक बक करता है। अब जब वो बक बक करता है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये क्या मसला है भाई, सुन्नियां ने सानू नहीं दसिया। मैं क्या, सुन्नी ये मुनाफकत वाला तर्जमा कर नहीं सकता, इसलिए बताता भी नहीं है। तवज्जो तवज्जो फरमाइए। जितने गैर मुकल्लिदीन हैं आप उनका तर्जमा इंटरनेट पर खोल के देख लें। इन्होंने किया इस हदीस का तर्जमा ये किया, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। वो मैं क्या, मेले दा तो लफज ही नहीं है। तर्जमा कहां से आ गया? कोई कहता है रश, यहां रश का तर्जमा भी नहीं है। कोई कहता है मेला, यहां मेले का लफज भी नहीं है। इधर देखो,
अब ये तो कहा जाता है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, ईदगाह में रश होता है, मेले में रश होता है, तो तुमने मेरी कब्र पर ना रश लगाना ना मेला लगाना है, नहीं जाना है, बस मक्के जाओ वापस आओ। अब मैंने कहा जाहिलो, अगर ऐसी बात है तो इस हदीस का क्या तर्जमा करोगे? मेरे नबी पाक ने फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकद जफानी, जिसने हज किया और बाद में मेरे मदीने में मुझे मिलने नहीं आया वो बेवफा है। क्या करोगे इसका? मेरे नबी ने फरमाया मनदार कबरी वजबत लहू शफाती, जो मेरे रोजे को देखे मेरी शफात वाजिब है। जब जाना नहीं है तो देखेंगे कैसे, जब देखेंगे नहीं तो शफात कैसे होगी? बताओ इन हदीसों का क्या करोगे? और अगर अभी भी नहीं तो मैं एक और हदीस भी सुना देता हूं ताकि आपका जहन और खुल जाए, काम करे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है जी हजरात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये इंद सूफिया रिवायत मकबूल है, फरमाया जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली, सदके जावा ओ मां दे लालो बोलिया ते करो ना, जज़ाकल्लाह, जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। तो 40 नमाजा किन्ने दिन पूरियां होंदियां ने? उची बोलो, ओ भावें घट पढ़ दियो, बोलो तो सही, हिसाब तो लाओ ना, ते पढ़िया भी करो। मरो साढ़े ते 5 फर्ज ने रोजाना दियां, 8 दिन 40 नमाजा पूरियां होनियां ने। अगर कोई बंदा मदीने जाए और 40 नमाजा पूरियां करन लगे, 8 दिन रहना है ना, तो फिर मदीने रश तक को नहीं ना लगना। फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का होता है। मैं पिछले साल भी गया था, मैं इस साल भी गया था, और इस साल फिर जाएंगे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा, फरमाया पे दर पे हज उम्रे किया करो अगर अल्लाह ने सआदत दी है। क्यों? फरमाया फइन्नहुमा यनफियानिल फक्र वज़्ज़ुनूब, फरमाया ये हज और उम्रा तुम्हारी फकीरी भी दूर कर देता है, तुम्हारे गुनाहों को भी साफ करके रख देता। जितने हो सके हज और उम्रे किया करो, कोई मना नहीं है। बल्कि अमीर बंदे के लिए बाद रिवायात में लिखा है हर 5 साल के बाद उस पर हज करना चाहिए। जिंदगी में अगरचे 1 मरतबा फर्ज है, लेकिन अमीर बंदे को ये हर 5 सालों के बाद करे। तो ये इस तो बहुत अमीर है, हर साल जावे, दुबई भी तो घूमन चल जाना, मरी भी तो चल जाना जी पहलो ही मरी है, तो जो नहीं फरमा रहा बदरा, ते मदीने टुर जा जिथे मरे भी हो तो जींदे हो जाते ने। समझ आ रही? जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, गल समझ पल्ले पै रही है। घंटे से ऊपर टाइम जा रहा है, ये आपको बोनस दे रहा हूं। बोनस की तनख्वाह डबल होंदी है। ते काका तुसी ढिले पै गए हो, ते जागो मेरे सोने। अब ये मौजू ये कैसा छिड़ गया मोहब्बत वाला कि जिसको पूरा करना मेरे लिए जरूरी है। और ये हदीस पाक, अब देखो ना, कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, यानी राश नहीं। मैं कहा यानी किथों आया? यानी क्या करो, यानी किथों आया? खुदा तुम्हें बर्बाद करे जाहिलो, इसका यह माना नहीं है जो तुम कर रहे हो। इसका माना असल आओ आपको फकीर बतलाता है। अगर नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना तो फिर वहां मरने का क्या मतलब है? फिर रोजे को देखने का क्या मतलब? फिर 8 दिन रह के 40 नमाजा पूरा करने का क्या मतलब है? फिर फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का, 40 लाख बंदा हज करके जब मदीने जाएगा तो रास्ता कोई नहीं ना लगना, क्योंकि रास्ता लगना है तो मैं क्या फिर तेरे गुब्बारे की हवा तो निकल गई पुत्र। अब बता तर्जमा क्या कहता है? तो नहीं मैनू पता, ते मैं क्या पता होंदा तो सुन्नी ना होंदा। अब आइए मैं इसका तर्जमा करने लगा हूं, और जेड़े गोडे छोटे फाड़ के बैठे हो, ढिले हुए बैठे हो, तकड़े होके बैठे आ जाए। 2 मानी उलमा ने बयान किए। इधर देखिए सारे हजरात, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए अपना दिलो दिमाग मुझे दे दीजिए ताकि मैं बात आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। इसका माना यह नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरे रोजे पर तुमने रश नहीं लगाना और मेला नहीं लगाना, नहीं है इसका यह मतलब। अब आप कहेंगे अत्तारी साहब फिर क्या मतलब है? सुनिए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यह है, मुल्ला अली कारी को पढ़ो, मुफ्ती अहमद यार खनैमी को पढ़ो, अशिया को पढ़ो, तुम्हें पता चले असल हकीकत क्या है। ये अशियातुल लम्हात है, कुछ शिया ना समझी बैठा हुए। हाँ
کیوں جی یہ وضاحت بھی ضروری ہے نا ساری قوم نو. ادھر دیکھو وجہ یہ ہے میرے نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اس کا ایک مطلب یہ ہے میں نے جو تیرے اندر ہلچل نہ پیدا ہوئے تے آکھیاں تاری صاحب چاس نہیں آئی تے جی ہلچل پیدا ہو جائے نا تو میری محنت دا مول پورا ہو جانا ہے. توجہ پہلا جواب اس کا یہ ہے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. کیا مطلب؟ فرمایا تم عیدگاہ میں سال میں صرف 2 مرتبہ جاتے ہو, بعد میں عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے. میرے روزے پر صرف 2 مرتبہ نہ جانا کہ بعد میں خالی رہے. فرمایا میرا روزہ اور ہے عیدگاہ اور ہے. جس کو مزہ آیا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ فرمایا عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جا کے عیدگاہ کو خالی چھوڑ دیتے ہو. خبردار میرے روزے پر 2 مرتبہ جا کے خالی نہ چھوڑنا. ایک معنی یہ ہے اور دوسرا معنی بھی سنیے. اسی طرح وجد نہ آئے تو مزہ آئے گا, دیکھنا چش آئے گی آپ کو. ملا علی قاری نے یہ ترجمہ لکھا فرماتے ہو جاہلو یہ کہتے ہو کہ نبی پاک کے روزے پر رس نہیں لگانا اور نہیں جانا کہ عیدگاہ نہ بنا. فرمایا نہیں, عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جاتے ہو کہ تمہاری دونوں مرتبہ عید ہے, پھر تم نہیں جاتے کہ اب تمہاری عید کا ٹائم ختم ہو گیا. مصطفیٰ کہتے ہیں میرے روزے کو ایسا نہ سمجھنا, تم جب جب آتے جاؤ گے تمہاری عید ہوتی چلی جائے. حضرات گرامی ایمان سے بتلائیے حدیث کا ترجمہ سن کے مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ حدیث ایک ہے, واردات دیکھو کیسے ڈالی جا رہی ہے. واردات, یہ واردات جب ہم روکتے ہیں تو لوگ پھر ہم سے ڈرتے ہیں. ہاں میں کیا نہ ڈر, تینوں کی پتہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تینوں کی پتہ ہے. او ویکھے یو ملنگ نو پوچھ. ادھر دیکھو میرے بھائی, یہ ہمارے عمران صادق بھائی دیگر احباب بیٹھے ہیں. آپ ان سے ہم بالکل سادہ لوگ ہیں, لیکن جب مسلک کی بات آئے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے, یہ وار وار سے پار ہے. کتنی بڑی خیانت کی جاتی ہے کہ نبی پاک کے قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا اور وہاں پر نہیں جانا. اور غلط بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک نے فرمایا عیدگاہ کی طرح میری قبر کو خالی نہ چھوڑنا, اور عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جاتے ہو تمہاری 2 عیدیں ہوتی ہیں. میرے روزے پہ جب آؤ گے تمہاری عید ہی ہو جائے گی.